चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 22। सभी श्लोक रिपीट करिए। पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यते अन्यः यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः सः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यते अनन्यः यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यते अनन्यः यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Translation: the personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading, and everything is situated within him. Purport: it is here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the Supreme Person. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Ananda Chinmaya Rasa.
a place where everything is full of spiritual bliss. Whatever variegatedness is manifest, there is all of the quality of spiritual bliss. There is nothing material. All variegatedness is expanded as the spiritual expansion of the Supreme Godhead Himself. For the manifestation, there is totally of the spiritual energy, as explained in chapter 7. As far as this material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, he is nonetheless all pervading by his material energy. So by his spiritual and material energies, he is present everywhere, both in the material and in the spiritual universes. Yasyantashthani means that everything is sustained by him, whether it be spiritual or material energy. It is clearly stated here that only by bhakti or devotional service can one enter into the Vaikuntha spiritual planetary system. In all the Vaikunthas, there is only one Supreme Godhead, Krishna, who has expanded himself into millions and millions of plenary expansions. These plenary expansions are four-armed and they preside over the innumerable spiritual planets. They are known by a variety of names: Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Rishikesha, Shankarshana, Pradyumna, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha, etc. These plenary expansions are likened unto the leaves of a tree, and the main tree is likened to Krishna, dwelling in Goloka Vrindavan. His supreme abode systematically conducts all affairs of both universes, material and spiritual, without a flaw by power of his all pervasiveness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम में फिर लौटना नहीं होता, वह परम धाम कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परमधाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परमधाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परमधाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से की
वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, केश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। वेदों में कहा गया है, पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमें सूचना मिलती है भगवान के परम धाम के बारे में, और वहाँ पे जाने का जो मार्ग है वो भी यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। भगवान के परम धाम तक सिर्फ भक्त ही पहुँच सकते हैं, भक्ति के द्वारा। यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम् भक्त्या लभ्यस्व त्वनन्यया। भक्ति के माध्यम से ही हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो और कोई मार्ग नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। कर्म, ज्ञान, तपस्या, ये सब भक्ति का साथ करनी चाहिए, तभी उसका लाभ होता है, तभी उसका हमें कुछ फल मिलेगा। नहीं तो सब कुछ वापस शून्य हो जाता है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ कर्म करते हैं, कई होते हैं जो तपस्या करते हैं, कई होते हैं जो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं, और ज्ञान के माध्यम से वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और सब कुछ बनाते रहते हैं। तो उनके माध्यम से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें सब कुछ करना है भक्ति के लिए, भक्ति सेवा के लिए, कृष्णा के लिए कर्म करना है, कृष्णा का ज्ञान प्राप्त करना है, कृष्णा का ज्ञान देना है दूसरों को, और कृष्णा के लिए तपस्या करनी है। जैसे हम एकादशी व्रत वगैरह करते हैं महीने में 2 बार, तो तपस्या भी कृष्णा के लिए करनी है, और ध्यान भी कृष्णा का करना है। जैसे आजकल ये मेडिटेशन बहुत फेमस हो गया है, सब मेडिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ मार्ग ढूंढते रहते हैं। मेडिटेशन भी कृष्णा के सुंदर रूप पे करना है, राधा कृष्णा के सुंदर रूप पे और गुरु पे। उसी से हम बच पाएंगे माया से। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान, तपस्या सब कुछ कृष्णा के लिए करना है। यही आदेश कृष्ण भगवान ने अध्याय 9 में दिया है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो भी प्रयास करते हो, कुछ कर्म करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वो सब कुछ तुम मुझे अर्पित करो, और इस तरह से तुम हमेशा माया से मुक्त रहोगे। और हमें कर्म, ज्ञान, ध्यान के जो भी फल मिलते हैं वो भक्ति करने से भी मिलते हैं, और कई ज़्यादा मिलते हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति ये सांसारिक गुणों से परे है, निर्गुण अवस्था में होता है। और अगर हमको भगवान की सेवा भक्ति मिल जाती है तो वही सबसे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उपलब्धि है, कि हम भगवान की कुछ सेवा कर सकें और करते रहें। तो हमें थोड़ी सी सेवा करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमको एक्चुअली सेवा करते रहना चाहिए भगवान की, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जब कीर्तन करते हैं, प्रसादम लेते हैं, लेक्चर सुनते हैं, या लेक्चर लेते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया, सारी एक्टिविटी कभी रुकनी नहीं चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए हमेशा। प्रभुपाद जी ऐसे ही चाहते थे कि सब कुछ चलता रहे, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि 10,000 साल तक कम से कम ये चलता रहेगा।
इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। प्रभुपाद जी ने अपनी शक्ति से सारे ऑब्स्टेकल हटा दिए और एक एक करके सारे ऑब्स्टेकल हट जाएंगे। जो भी भक्ति को रोकने का ट्राई करेगा या भक्तों को रोकने का ट्राई करेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो भक्तों के लिए भक्ति करने का जो मार्ग है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगले 10,000 साल तक ये ऐसे ही चलने वाला है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, इसको कोई हमें टोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा, हमें कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा। जो भी करेगा, जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो ऐसी व्यवस्था प्रभुपाद जी ने करके रखी। वो सेनापति है, तो सेनापति ऐसी रचना करता है या ऐसी व्यवस्था करता है कि सेना आराम से आगे बढ़ सकती है और सारे दुश्मन एक एक करके मरने लगते हैं। उसी को सेनापति कहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी हमारे सेनापति है और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि परम पुरुष कृष्ण की सेवा और भक्ति ये 10,000 साल तक चलती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं। और कोई इसको रोकने का ट्राई भी करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जो विरोधी बनता है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता, मतलब उसका शरीर नहीं रह सकता। वो आत्मा है, वो तो वो मरेगा नहीं, पर उसका शरीर नहीं रह सकता, शरीर उसका बदल जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर पलटना पड़ेगा। ये जितने भी नास्तिक है या भक्ति मार्ग को छोड़ के जितने भी मार्ग फॉलो कर रहे हैं, इन सबको अपना शरीर बदलना पड़ेगा। और एक बार दो बार नहीं, बार बार बदलना पड़ेगा। पर जो इस मार्ग पे लगा है, प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चल रहा है, उसके रास्ते में से सारे ऑब्स्टेकल हट जाएंगे और उसको कभी भी परेशानी नहीं होगी भक्ति करने में। तो ये व्यवस्था प्रभुपाद जी ने करके रखी है। और भगवान सर्वव्यापी है, उसी तरह प्रभुपाद जी भी सर्वव्यापी है। यथा देवे तथा गुरु। तो जैसे कृष्ण भगवान सर्वव्यापी है, उसी तरह से श्रीला प्रभुपाद भी सर्वव्यापी है। और जहाँ पे भी उनका फोटो है, उनका नाम है, उनकी किताबें हैं, उनका लेक्चर है, वहाँ पे प्रभुपाद जी पर्सनली उपस्थित। तो इसीलिए हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ पे भी हमको वहीं रहना है और वहीं पे रह के हमें प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ने हैं, उनका लेक्चर सुनना है और उनके आदेश के अनुसार 16 माला करनी है। तो हमको अपनी जगह भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे हमें सारी कृपा मिलेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान की तरह सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट। तो भगवान के और उनके भक्त के तीन लक्षण होते हैं: ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट। वो हर जगह पे उपस्थित है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट मतलब वो सर्वशक्तिमान है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णवा इज ऑल पावरफुल। वैष्णव भक्त जो होता है उसके पास कृष्ण जैसी ही शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मतलब कि उनको सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको सब कुछ पता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को भी सब कुछ पता है, फ्यूचर भी पता है। उन्होंने ये जो कोरोना का पैंडेमिक है वो 50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये पैंडेमिक आने वाला है। क्योंकि उस समय उन्होंने देखा कि कोई भी वेदों के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। जो साफ सफाई के, हाइजीन के जो नियम है वेदों में, आयुर्वेद में, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है समाज में। तो प्रभुपाद ने तभी प्रेडिक्शन कर दिया था कि समाज में बहुत बड़ी महामारी आएगी कुछ सालों बाद। और वो उनकी भविष्यवाणी सत्य हो गई, ये इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया। और प्रभुपाद जी ने और भी भविष्यवाणी की है कि इसके बाद सभी लोग वेदों को और गीता को फॉलो करना शुरू कर देंगे और 10,000 साल तक ये चलता रहेगा। पूरी धरती जो है वो साफ हो जाएगी पाप से और पूरी धरती पे भक्तों का राज होगा। और जो भक्ति करेगा वो ही सरवाइव करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगले 10,000 साल तक इस प्लेनेट पे सिर्फ भक्त ही पैदा होंगे और जो भक्त नहीं है वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा, उसका कोई पालन नहीं करेगा। जो भक्ति नहीं करेगा उसको लोग छोड़ देंगे, उसको समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये प्लेनेट पूरा वैकुंठ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसी को जन्म मिलेगा जो भक्ति करना चाहता है। जो भी आत्मा भक्ति नहीं करना चाहती, यहाँ पे उसको जन्म ही नहीं मिलेगा। और जन्म मिला भी तो उसको समाज से बाहर कर देंगे कि ये समाज का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करेगी और
उसको या तो जंगल में रहना पड़ेगा अकेले में, और उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो एक एक करके सारे नियम कानून भक्ति के फेवर में आएंगे और भक्तों के लिए अच्छे होंगे। अगले 10,000 साल भक्तों के लिए अच्छे होंगे। जो भी भक्ति करेगा उसके लिए सब कुछ अरेंजमेंट अच्छे से हो जाएगा, और जो भक्ति नहीं करेगा उसको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि धर्म वापस आ जाएगा। अभी अगले 10,000 साल में धर्म का राज होगा, और ये भविष्यवाणी शास्त्रों में भी की है, और सब जगह पे की गई है कि 10,000 साल तक धर्म का राज होगा, अब से लेके अगले 10,000 साल। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट यही है कि हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, और हमें माया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले ही माया को ख़त्म करने का पूरा उपाय दे दिया है। हमें बस उनके ग्रंथों को कानून की तरह फॉलो करना है, और जो नहीं फॉलो करेगा उस पर बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, और जो करेगा उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये नियम चेंज होने वाला है अभी कुछ टाइम में, कि अब तक ऐसा हो रहा था कि भक्तों को परेशानी हो रही थी और जो भक्ति नहीं कर रहा था उसको सुविधा मिल रही थी। अब उल्टा होगा, अब जो भक्ति करेगा उसको सुविधा मिलेगी। तो अब से लेके अगले 10,000 साल जो है उसमें सारा धर्म और सारा कानून चेंज हो जाएगा। कानून भक्तों के फेवर में होगा। जो भक्ति करेगा उसको सारा फैसिलिटी मिलेगा अच्छा, जो भक्ति नहीं करेगा उसको सज़ा मिलेगी और उसको प्रॉब्लम्स मिलेगी, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भक्ति करें और भक्ति को फॉलो करें, धर्म को फॉलो करें। अगर हम धर्म को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, और हमको हर जगह से सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से भी मिलेगा, और समाज से भी मिलेगा, और धीरे धीरे करके हमारे परिवार वालों को भी चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट में ही चेंज आ जाएगा और समाज में ही चेंज आ जाएगा, कानून में चेंज आ जाएगा, तो घर वाले भी डरेंगे हमको रोकने से कि कहीं हम पे एक्शन ना हो जाए। अगर हमने किसी को भक्ति करने से रोका या भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला या गीता के बारे में कुछ बोला तो उन पे कार्रवाई होगी। तो कोई भी हमें टोकने से डरेगा। अभी तो लोग टोकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ही नास्तिक है, गवर्नमेंट ही राक्षस है, तो इसलिए लोग बोलते हैं और हमको रोकने का ट्राई करते हैं। पर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि गवर्नमेंट में कानून ही बन जाएगा कि जो भक्ति कर रहा है वो अच्छा है और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो अपराधी है, उस पर कार्रवाई होगी कानून। तो फिर कोई हमको बोलने से भी डरेगा और फिर सब लोग भक्ति करेंगे। मतलब या तो प्रेम से करेंगे या तो डर के मारे करेंगे, बट सब लोग भक्ति करेंगे। तो ये टाइम अभी आने वाला है, कानून चेंज होने वाला है पूरा, और पूरा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। अंदर से और बाहर से हर जगह से सिस्टम चेंज होगा, और सब समाज के अंदर जो जातिवाद है और सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे करके जाग रहे हैं कि अभी का जो सिस्टम है वो उल्टा उन्हीं को नुकसान कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है और हर चीज़ महंगी हो रही है, और उनका खून, ये लोग इनका खून पी रहे हैं लोगों का, और उनके टैक्स के ऊपर वो इतना इतने बड़े बड़ी रैलीज करते हैं, इतना खर्च करते हैं करोड़ों रुपया, अपने लिए एरोप्लेन बनाते हैं और विदेश घूमने जाते हैं और टाइम पास करते हैं। तो लोग अभी समझने लगे हैं कि ये लोग टैक्स ले रहे हैं हमसे, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, हमसे पैसा लूटते जा रहे हैं, और बस वो उसको पैसे को अपने भोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो खुद ही भोक्ता बने हुए हैं, खुद ही भगवान बने हुए हैं। अभी के जो लीडर है उनको लगता है वो खुद ही कृष्णा है, जबकि उनको पता ही नहीं कृष्णा क्या है। कृष्णा अगर हमसे भोग लेते हैं तो हमें 10 गुना भोग ज़्यादा देते हैं, और कृष्णा को तो आप एक प्लेट भोग लगाओ तो पूरी की पूरी प्लेट आपको वापस मिलती है, उसमें से एक दाना भी भगवान खाते नहीं है। पर ये तो ऐसे भोगी हैं, ये खुद को कृष्णा समझते हैं और खाते रहते हैं और उल्टा महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारी जेब छोटी होती जा रही है इनके टैक्स भरते भरते। तो ये एक्चुअली कृष्णा नहीं है, ये कंस है। ऊपर जो बैठे हैं वो कंस है। अगर कृष्णा होते तो हम, अगर हम टैक्स 1 रुपया टैक्स भरते तो हमको 10 रुपये मिलते, अगर वो कृष्णा होते तो। पर अभी जो ऊपर बैठे हैं वो कृष्णा नहीं, वो कंस है। वो हमसे 1 रुपया ले रहे हैं, फिर एक की जगह 2 रुपया ले रहे हैं, फिर 10 रुपये ले रहे हैं, फिर 20 रुपये ले रहे हैं। एक एक करके टैक्स बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। तो ये ऊपर जो बैठे हैं ये कंस है, ये कृष्णा नहीं है। कृष्णा का उन्होंने एक
कृष्णा का नाम लेके या गीता का नाम लेके वो एक्चुअली कंस है वो। और एक्चुअली में अगर कृष्णा ऊपर बैठेंगे तो वो तो हमसे पैसे मांगेंगे ही नहीं, टैक्स ही नहीं मांगेंगे, करेंसी बंद कर देंगे। और फिर जो डिवोटीज राज्य चलाएंगे, डिवोटीज जब देश को चलाएंगे तो उस देश में करेंसी नहीं होगी, लोगों को टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा, लोगों को सिर्फ गीता पढ़नी है, हरे कृष्णा का 16 माला चैंट करना है, और फिर उनको सब कुछ मिल जाएगा। गवर्नमेंट उनको सब कुछ देगी, खाना पीना रहना, गाड़ी, पेट्रोल, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ 16 माला करो और भगवान का नाम लो और गीता पढ़ो, भगवान को भोग लगाओ। और फिर ये जो नया कानून आएगा इसमें सारे मांस की दुकान, शराब की दुकान, सिगरेट के कारखाने, टोबैको, जितना भी नशे का जो धंधा है वो सब बंद हो जाएगा। और नए कानून के अंतर्गत कोई भी गैरकानूनी तरीके से जानवर को मार नहीं पाएगा और वायलेंस नहीं कर पाएगा, तो कड़े कानून होंगे। तो धीरे धीरे करके ये चेंजेस आ रहे हैं। भी रिसेंटली हमें पता चला है कि मध्य प्रदेश में रामायण और महाभारत इंजीनियरिंग सिलेबस में डाल दी गई है। तो ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे करके, धर्म के पक्ष में सब कुछ आ रहा है। तो इस तरह से हम अगर ये धर्म को फॉलो करेंगे जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है। और एक और चेंज आने वाला है जल्दी कि प्रभुपाद के ग्रंथ कानूनी किताब बन जाएंगे। तो पूरा संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब जगह पे प्रभुपाद की बुक्स होंगी एज द लॉ बुक। और कोई भी निर्णय लेना होगा तो प्रभुपाद की बुक में से पढ़ के निर्णय लिया जाएगा कि इस केस का क्या निर्णय होगा। तो इस तरह से पूरा कानून ही प्रभुपाद की किताब के अनुसार बन जाएगा। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, भावार्थ और तात्पर्य पढ़ रहे हैं, कोई साधारण चीज नहीं है। ये अगले 10,000 साल तक ये कानून है। और ये कानून की किताब बन के कोर्ट में इसमें से पढ़ के डिसीजन दिया जाएगा। तो जो कोर्ट में जो वकील बैठेगा, वकील होगा या जो जज बैठेगा, वो ये प्रभुपाद की बुक पढ़ के बताएगा कि हाँ इस केस में ऐसा होना चाहिए। किसी ने अगर चोरी की है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, किसी ने अगर झूठ बोला है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, किसी ने अगर प्रॉपर्टी का इलीगल कब्जा किया है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ये सारे कानून प्रभुपाद ने बताए हैं भागवत में और गीता में, सब जगह पे क्लियर एकदम इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन से केस में क्या होना चाहिए। कोई धोखा देता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मर्डर करता है, कोई रेप कर देता है, तो इसके हर केस में क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ शास्त्रों में बताया हुआ है। प्रभुपाद ने एक एक पॉइंट बताया हुआ है। और बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई में क्या उनको सिखाना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, एक एक पॉइंट को प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो धीरे धीरे करके ये सभी स्कूल कॉलेज में आएगा, कानून में आएगा, कोर्ट में आएगा, संविधान में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सब जगह पे यही आधार बन जाएगा। और पूरी गवर्नमेंट ही भक्तों के द्वारा चलाई जाएगी। तो ये टाइम अभी ये टाइम अभी काफ़ी नज़दीक है। अभी की जो गवर्नमेंट है उनके जो सारे जो गलत काम है वो सामने आ रहे हैं लोगों के। और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और हमको कुछ मिल नहीं रहा है उसके बदले में, हमारी जेब खाली हो रही है बस। तो लोग भी जाग रहे हैं अभी, और लोग ही इनको हटा देंगे एक टाइम पे, और वो प्रभुपाद जी को लेकर आएंगे। हमें बस प्रभुपाद जी को फॉलो करना है और प्रभुपाद के बारे में सबको बताना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है, और ये 10,000 साल तक ये कानून बनेगा। तो इससे लोगों को एक आशा मिलेगी कि हाँ चेंज आ सकता है समाज में, और अच्छी गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसमें करेंसी नहीं होगी, करप्शन नहीं होगा, और हमसे कोई टैक्स नहीं लेगा। हमको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान की पूजा करनी है, और हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से लोगों का जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगा, उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी ये जो गवर्नमेंट है गधे की तरह सबसे काम करा रही है और टैक्स लेती जा रही है बस। पर जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी धर्म वाली, उसमें ना तो गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बस नाम लेना है, हरे कृष्णा बोलना है, 16 माला जाप करना है, और प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, और उसके बारे में प्रचार करना है, बच्चों को सिखाना है, स्कूल में सिखाना है, कॉलेज में सिखाना है, सब जगह पे यही सिखाना है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे लॉज इसके ऊपर बेस्ड होंगे।
तो हमें इस पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि ये चेंज आ रहा है धीरे धीरे और आएगा भी, और धीरे धीरे करके धर्म के पक्ष में हो जाएगा सब कुछ। तो धार्मिक लोगों के लिए अच्छी लाइफ होगी, और जो धार्मिक लोग नहीं है उनकी लाइफ बहुत ही खराब होगी, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां होगी। तो ये आश्वासन प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिया है। एक डिवोटी को प्रभुपाद ने बोला था कि तुम चिंता मत करो। तो एक डिवोटी ने आके बोला प्रभुपाद से कि हम तो इतना ट्राई कर रहे हैं बट गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट ही तुम्हारे अंडर होगी, इसकी चिंता मत करो तुम। ये एक उनके डिवोटी हैं प्रभुपाद के, रामेश्वर दास, अमेरिका के, मतलब अमेरिकन है वो। उनको प्रभुपाद ने बोला था कि एक दिन पूरी गवर्नमेंट हमारे अंडर होगी, और फिर हम खुद ही लॉज बनाएंगे, हम खुद ही पॉलिसीज बनाएंगे पूरे देश को चलाने के लिए। तो ये आश्वासन प्रभुपाद ने दिया हुआ है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सब हमारे ही फेवर में आने वाला है, जो डिवोटीज हैं। अभी हमारा नंबर छोटा है, बट वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, सही गुरु को फॉलो कर रहे हैं, हम शिला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एक दिन पूरी दुनिया हमको फॉलो करेगी। और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हम जब प्रभुपाद को फॉलो करते हैं तो बाकी लोग भी हमको फॉलो करते हैं। वो हमारे तरीके से लेक्चर लेते हैं, हमारे तरीके से प्रभुपाद का नाम लेते हैं, और वो भी हमको फॉलो करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि प्रभुपाद असली गुरु हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, और सबको यही करना पड़ेगा। और जो भी ये नहीं करेगा उसको अब उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें इसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना चाहिए, और इस तरह से हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी, और हमारे साथ जो है उनकी भी लाइफ अच्छे से चलेगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस या डाउट्स किसी को है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम अगला एक श्लोक पढ़ लेंगे। सभी श्लोक रिपीट करिए। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले तव अन्वारित्रम् आवृत्तिं चैव योगिना आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयान्ता तं यान्ति तं कालं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभा। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले आवृत्तिम् त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयान्ति तं तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभा। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले तपनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयान्ति यं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए।
जी प्रभु जी. Translation. O best of Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world, the yogi does or does not come back. Purport. The unalloyed devotees of the Supreme Lord, who are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hand and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. If the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. But if he is not so expert, his success depends on his accidentally passing away at a certain suitable time. The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in next verse. According to Acharya Baladeva Vidyabhushana, the Sanskrit word Kala used herein refers to the presiding deity of time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. जय श्री प्रभुपाद. हमारे पास टाइम वैसे कम है. हम लोग इस पे हिंदी में और इंग्लिश में कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे.